Hello, my name is Mohammed bin Mufassir and this is Zurez Kashan Shah, my partner. And our advisor for this project is Dr. Faisal Munir and our co-supervisor is Dr. Ishaq Ahmed. Our project is a semi-leptonic decay of a triple heavy baryon into a doubly heavy baryon of both spin half channels. So basically the motivation for this is the LSE observed a doubly heavy baryon in 2017. The LSE observed a doubly heavy baryon in 2017 and to investigate triply heavy baryons, we've cooked up a model which studies spin half to spin half from the B to U channel, and it allows us to test the standard model predictions further. And if further in the future a particle like this is observed, then we can our findings can be used to and our parameters can be used for further study. Okay, so as we know, baryons are a type of semi-atomic particle made up of three quarks. In our case, we're using a triply heavy baryon with a quark composition of a charm bottom transitioning into a doubly heavy baryon with a charm up. So the B transitions into a U, which turns from a heavy into a light quark. So there's a flavor transition, and as a result, we're computing this over a semi-leptonic channel. So that means that we have a hadron, and in addition to that, we have a lepton and its antineutrino pair being produced. And we're going to be using the weak interaction. So this is essentially over the W boson. This is a weak interaction decay. So our goal is essentially to compute the decay width of this process, and we compute the amplitude first by using the electroweak theory and Feynman rules. So this is the Feynman diagram for it. Using the Feynman rules, we can write the overall amplitude expression, but in order to simplify this, what we can use is we can use effective field theory and Fermi theory of beta decay. So essentially, in the limit as the k square is greater than m omega square, what we do is we essentially do an expansion over that and take all the terms and combine them into a constant along with this. So we're only left with the hadronic and the leptonic matrix elements, which we sandwich essentially between our initial and our final parts. So the polarization, now we introduce the polarization of the virtual boson, which mediates this transition, or we can see over here. So what we do is we use this expression in order to introduce the polarization of the W boson, and we can split this into the hadronic and the leptonic part by introducing the helicity basis, which makes our calculations extremely simple. So by taking the dagger of the amplitude, which gives us the m mod square essentially, and summing over all the possible polarization states, we're going to be left with all of these elements, which we can see result in an extremely large number of computations, which we have computed then some by hand and some by Mathematica. Now, the hadronic parts, because of their complex, strong interaction nature, cannot be done directly analytically. So we need to essentially parameterize them using the form factors derived from QCD sum rules. This is the kinematic diagram over here as well. As we can see that essentially a B quark splits into a U and the virtual W boson propagator, which essentially then splits again into the lepton and its antineutrino. Okay, so I'll start with this part over here. As already explained, this part was derived using QCD sum rules, which is a bit complicated to get. The leptonic part was easy to get, and at the end, using QCD sum rules and using a 3-point correlation function, we get this expression over here. And the expression over here, these are the spinors used to compute the leptonic part of this part. The spinors used are in the helicity basis, which are these two parts over here. And as you can see, this form factor is plotted with the mass deviations and the deviation in the form factor at the value q square equal to 0, which is the momentum of the two particles. As you can see over here, these are the plots which have been done. This represents the deviation in the upper deviation. This represents the lower deviation in it, and this is the central curve of the form factors. And using all this, at the end and summing over all the helicity amplitudes, we get the decay width of this process. The decay width is divided into this part, and this is the total helicity of the basis. This part represents the
the transversely polarized part, this represents the longitudinally polarized part, and this represents the scalar unpolarized part because of the T factor over here. And at the end, taking the q square to this side over here and integrating with infinity, we get these three results with obvious uncertainties in these results. And this will further help us study the Standard Model and maybe look beyond new physics in the Standard Model in the future. अस्सलाम वालेकुम सर हम लिपिड नैनो पार्टिकल पे काम कर रहे हैं। लिपिड कुछ ड्रग्स हमारे ऐसे होते हैं जो अगर बॉडी में जाए ऐसे बगैर इनकोडेड तो वो डिग्रेड हो जाते हैं, तो इसलिए हम लिपिड नैनो पार्टिकल के अंदर वो ड्रग डाल के कैरी करते हैं। अब रिसेंटली जो इस पे काम हुआ है, जो हमारा मॉडर्ना का वैक्सीन था या फाइज़र था, वो भी लिपिड नैनो पार्टिकल के अंदर आप डालते हो फिर कैरी करते हो, जो कोरोना का वैक्सीन था। अब जो पर्टिकुलर लिपिड नैनो पार्टिकल हम यूज़ कर रहे हैं वो लाइपोसोम है। लाइपोसोम की खूबी ये होती है कि ये बाई लेयर होता है। हमारे दूसरे जो नैनो पार्टिकल होते हैं वो अक्सर सिंगल लेयर होते हैं, और जो लाइपोसोम पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं वो बाई लेयर है। बाई लेयर का हैसियत जो खूबी है, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी है कि इसमें आप इसका जो बीच वाला एरिया है, ये हाइड्रोफोबिक, कोई भी हाइड्रोफोबिक ड्रग हो तो उधर डाल सकते हैं। हाइड्रोफोबिक जो हमने यूज़ किया है, पर्टिकुलरली हमने हाइड्रोफोबिक फ्लोरोफोर यूज़ किया है सेंसिंग के लिए, तो हमने इधर इंकल्चर किया है। अगर हमारा ड्रग जो है हाइड्रोफिलिक हो तो इधर जो इसका कोड होगा वो एक्विस होगा, तो उसमें हाइड्रोफिलिक ड्रग या हाइड्रोफिलिक क्या कहते हैं फ्लोरोफोर डाल सकते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो होते हैं लाइपोसोम, उसमें से अक्सर ड्रग लीकेज होता है, तो हम उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। उसके लिए हमने एक यूनिक लिपिड क्या कहते हैं फास्फोडाइलकोलाइन मटेरियल यूज़ किया है, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल यूज़ किया है। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है इसके बीच में जाएगा, जो इसका बाइलेयर का स्ट्रक्चर है, ताकि इसकी ड्रग लीकेज कम हो। सिंथेसिस हमारा आसान है। हमने कोलेस्ट्रॉल फास्फोडाइलकोलाइन क्लोरोफॉर्म में डाल के उसको तो 5-6 मिनट के लिए डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद वो रोटेटरी ऑपरेटर से ऑपरेट कर दिया। उसके बाद हमारा फ्लास्क में जो है एक थिन लेयर बन जाता है। फिर हम दूसरा सोल्यूशन बनाते हैं, बफर सोल्यूशन। उसमें से हम अपना जो फ्लोरोफोर है वो डालते हैं। हम अपने पहला जो सैंपल था उसमें हम फ्लोरोफोर एज अ ड्रग यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे हम थिन लेयर के जो बना हुआ है ऑलरेडी फ्लास्क में, उसमें बफर सोल्यूशन डालते हैं तो वो जो लेयर है वो टूट जाता है और ऐसे वेसिकल्स बन जाते हैं, और वो जो फ्लोरोफोर है वो अंदर जो है इनकैप्सुलेट हो जाता है, और या हमारा बाइलेयर लिपिड पार्टिकल नैनो पार्टिकल बन जाते हैं। आगे जो सिंपल रीज़न है इन्हें लिपिड नैनो पार्टिकल बनाने की, लिपिड नैनो पार्टिकल तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन बाई लेयर बनाने का मकसद ये है कि सिंपली जब आप सिंपल नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं सिंगल लेयर वाले, आप उसे एट अ टाइम या ड्रग डिलीवरी कर सकते हो या आप उसके साथ बायो सेंसिंग कर सकते हो। इसकी बाई लेयर का मकसद ये है कि आप इसको ड्रग आप इसके कोर में डालो और कोई ट्रैकर या कोई फ्लोरोफोर इसकी इस सरफेस के बीच में भी हो। उससे आप ये होगा कि जब आप का ड्रग बॉडी में जा रहा है, आप साथ उसे मॉनिटर कर रहे हो कि किस तरह मूव कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मेडिकल फील्ड में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हो सकती हैं। दूसरा ये जो लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल है और किसी की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इसका स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है। अब जब कोलेस्ट्रॉल को ऐड करते जाएंगे उससे इसका स्ट्रक्चर रिजिड होता जाएगा, और जितना पीसी की अमाउंट ज़्यादा होगी आप इसकी रेशियो को वेरी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरह से उसे यूज़ करना है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, और ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं और डिस्कशन है। ये सिंपल फ्लोरोफोर वाला चार्ट है और ये ऊपर है ये लिपिड के नैनो पार्टिकल्स का है। अब देखें फ्लोरोफोर ये पीक शो करता है। जो लिपिड के नैनो पार्टिकल्स है ना, वो लिपिड क्योंकि इतना पोलर मॉलिक्यूल नहीं होता और वो इतने रिएक्टिव नहीं होते कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी पीक्स शो करें। ये फ्लोरोफोर की ही पीक्स हैं, लेकिन ये सिंपल फ्लोरोफोर है और ये लिपिड के अंदर इनक्लोज फ्लोरोफोर है। अब देखें यहाँ पे जो पीक थी, ये मेन पीक जो फ्लोरोफोर की थी, ये कितनी शार्प है, लेकिन ये एज़ कम्पेयर टू इसमें, क्योंकि अब वो लिपिड के मैट्रिक्स के अंदर है, तो वो उसकी वो पीक की वो इंटेंसिटी नहीं रही और वो पीक भी थोड़ी सी कम हुई है। तो हमें एक इंडायरेक्ट कन्फर्मेशन मिलती है इससे कि जो हमारा फ्लोरोफोर था वो लिपिड के नैनो पार्टिकल के अंदर है। और ये रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी है। रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी आप ग्राफ देखें, ये फ्लोरोफोर का ग्राफ है और ये लिपिड के नैनो पार्टिकल्स के अंदर जो फ्लोरोफोर है उसके लिए ग्राफ है। ये जो छोटी छोटी आप पीक्स देख रहे हैं वो यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये वही रीज़न है कि जो रमान की वेवलेंथ्स हैं वो दूसरे नैनो पार्टिकल्स की वजह से बेशक वो पीक्स दे रहा है अभी, लेकिन वो पीक्स इतनी छोटी हो गई हैं, ये शो कर रहा है कि वो मैट्रिक्स के अंदर इनक्लोज्ड है। अब फ्लोरोफोर, अब
जब भी कोई रेस आती है वो पहले लिपिड के नैनो पार्टिकल की लेयर को क्रॉस करती है, फिर वो फ्लोरोफोर तक जाती है, फिर फ्लोरोफोर से दोबारा उसको वो लेयर क्रॉस करके एमिट होती है, तो फिर इसीलिए वो इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस हो गई है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये जो पीक्स शो हो रही है ना थोड़ी थोड़ी, वो यहाँ पे भी रहेंगी। पीक्स होती है लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, और इसकी कंक्लूजन हमारे पास ये है, इंटेंसिटी रिडक्शन इन लिपिड नैनो पार्टिकल सैंपल। अभी अब देखें इंटेंसिटी कैसे रिड्यूस हुई है, ड्रास्टिकली यहाँ से इंटेंसिटी रिड्यूस हुई है। उससे हमें पता चलता है कि ये जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है हमारे फ्लोरोफोर का, वो इनकैप्सुलेट हो गया उन नैनो पार्टिकल्स के अंदर। और लॉस ऑफ रमान फीचर लॉस हुए हैं। जो पीक्स थी, जितनी भी शार्प पीक्स थी, उनका ना बिल्कुल ही माइन्यूट सी या छोटी पीक्स हो गई हैं। ये हमें सजेस्ट करता है कि जो फ्लोरोफोर हैं वो डिसिपेट हो गए या सिग्निफिकेंट वीकेंड हो गए हैं लिपिड नैनो पार्टिकल के अंदर इनक्लोज होने की वजह से। तो उसका इफेक्ट ऐसे हुआ है। दिस सजेस्ट दैट द फ्लोरोफोर माइट बी मोर रिस्ट्रिक्टेड एंड शील्डेड एनवायरनमेंट इनसाइड द लिपिड मैट्रिक्स। अब वो ज़्यादा शील्डेड एनवायरनमेंट में है, इसलिए उसकी पीक्स उस तरह की नहीं बन रही जैसी वो सिंपल फ्लोरोफोर में बन रही थी। और इन प्रोग्रेस अभी हम ये काम कर रहे हैं। हमने अपने सैंपल की 2 करेक्टराइजेशन करवा ली हैं। सेम और FTIR के रिजल्ट्स भी इस वीक में आने वाले हैं, 1-2 दिन तक। उससे हमें ना बेहतर एक आइडिया हो पाएगा कि हमारे लिपिड नैनो पार्टिकल बने हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की हैं। और न्यू फॉर्मुलेशन कंटेन्स बोथ ड्रग एंड फ्लोरोफोर। और हम ये जो हमने लिपिड का नैनो पार्टिकल्स बनाया था, इसमें हमने फ्लोरोफोर को ही ड्रग यूज़ किया था। अब जो हम इसे नेक्स्ट हम बना रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप ये है, अब हम जो पार्टिकल बनाएंगे उसके अंदर ड्रग अलग होगा और फ्लोरोफोर अलग होगा। हम बाइलेड के अंदर फ्लोरोफोर डालेंगे और सेंटर में उसके एक्वा सॉल्यूशन में एक ड्रग होगा। और ये अपकमिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से कंफर्म हो जाएगा कि हमारी ड्रग इनकैप्सुलेशन कितनी है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, और मतलब जो भी स्ट्रक्चर है उसका किस तरह से है। और हम उसे ना खुद अपनी विल पे चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी एप्लीकेशन के हमने कैसे यूज़ करना है। और कंक्लूजन ये है कि जो इसकी डेवलपमेंट है, ये बेसिकली हमने ऐसा सिस्टम एक डेवलप किया है जिससे आप मॉनिटर भी कर सकोगे अपने ड्रग को कि वो कैसे कैसे मूव कर रहे हैं, और आप ड्रग को बॉडी के अंदर डिलीवर भी कर सकोगे। तो ये बहुत ही एक एडवांसमेंट है। पहले सेम मटेरियल से इनसे इतना काम नहीं हुआ था और इसको हमने आगे कंटिन्यू किया। दैट्स इट, थैंक यू। Okay, so probably the best model we have is standard model to explain the nature, but it has some limitations, and one of them is gauge hierarchy problem. And the model we are using is Anderson model, RS model, to address this problem. So the problem is that the mass of Higgs is theoretically arbitrary. It could be of like any value, but experimentally we have only the value only matches to the weak scale. So in standard model they fine tune the equations, they introduce corrections, and through that they match it with the experimental value. So however, the model we are using, it doesn't require that fine tuning, and it addresses it naturally. So we have the metric here. This is the warp vector, and by introducing it, we are going to scale down the mass of Higgs from Planck scale to electroweak scale. So this is the action, and when we solve the equations, we get to know the factor, and this factor is basically it is going to scale down the mass of Higgs. So basically सर इसमें ये है कि हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी प्रेडिक्शंस एक्सपेरिमेंटल, फॉर एग्जांपल लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंदर जो भी पार्टिकल्स कुछ ऐसे नहीं हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के मोड्स हैं, इनके एग्जिस्टेंस के बारे में ये प्रिडिक्ट करता है, और भी ऐसे काफ़ी सारे सिग्नेचर्स के बारे में बताता है हमें। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम जनरल रिलेटिविटी देखें तो वहाँ पे कोई ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है डायमेंशंस पे, कोई भी डायमेंशंस की हो सकती हैं। तो लाइक हम 5th डायमेंशंस में इंट्रोड्यूस करते हैं, और जिसकी वजह से वो जो हायरार्की है वो काफ़ी इजीली एक्सप्लेन होती है। इसका मास एंड जो ग्रेविटी इतनी वीक है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो इससे भी ये काफ़ी नेचुरली डिस्क्राइब है।